Maya Tamohantarpanugabhaktitam Ravi Gaurachandraya Radhikai Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Prabhajantam Manupetam Apeta Krityam Daipayana Vidhakatara Ajuha Putreti Tanmayataya Taravo Vinedastam Sarvabhutaridayam Munimanatosmi Tabaivasmi Nadivavina Iti Vikyaya Gate First of all, I'd like to pay obeisances at the lotus feet of my instructing initiating spiritual master. Om Vishnu Pada Ashtam Ashtam Vishnu Vishnu Araptakam Gurudev Srila Bhakti Vedanta Swami. Next, I'd like to pay obeisances in number of times at the lotus feet of the whole recipic succession. Next, I'd like to pay obeisances at the lotus feet of my dear beloved God brother, Sannyasi, Om Vishnu Pada, Ashtokar Shatam, Srimad. Srimad Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj. I wanted to say a few words that will be particularly relevant for the disciples, because we had the fortune of hearing something that you did not get the opportunity to hear. When your Gurudev came to Math, do you know which year? 1981. 1960s sometime. And Keshavji Gauriya Math was established by our Gurudev, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, at the order of his Guru, our Param Gurudev Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. That time, the Math was very rare, completely less people there, just a few brahmacharis, and they did not have enough money to offer bhog to Thakurji all the time, the way we do here now. So I heard this, and that was very heart-rendering, that time what they used to do, they used to go collect water from outside to cook at the temple. They used to go in the night to the market, vegetable market, when everybody is done and whatever they left, the residues were being the food of the cows and other animals. So during that time, because of the situation they were in, they had to pull food out from the cow's mouth to offer to Thakurji and cook, and they used to feed themselves that way. So what I'm trying to say is, bhakti, what we are doing is not the way these people did. We will never be having that situation in life to have the opportunity to fight with the animals, to take food offered to Thakurji. Think about that was done in the presence of our Guru, the Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj.
spiritual leader who just went worldwide and built so many temples, had so many disciples. So how many people know that their beginning was so austere, their beginning was so simple, like that? You cannot imagine the way they practiced bhakti under such hard situation. Sometimes we think that bhakti is really, we have to study Upadeshamrita, Manosiksha, Bhagavad Gita, Bhagavatam, Bhakti Rasamrita Sindhu, and slowly and gradually we go to Rasa Shastra, try to understand Bhakti Rasa and all that. But there is one thing that is very different from all these pedantic pedantic actions, duties. That is the simple nature of human beings that allow us to deal with another human being. Just like when we grow up, we get many friends. We play with them. We find out what they like, dislike. We try to, some situation, please them by doing something. Somebody we like. Some friends we like, some friends we don't. That is natural. Because everybody's nature is really created differently. It is in the constitution. So depending on your nature, you will get associated or like more somebody with complementary nature, similar nature, different nature. So those things are also complex. Why we like someone, why we don't like someone. Sometimes it has to do with our own material disqualifications like Kam, Krodh, Lobh, Moho, Mat, Matsvarja. You know about those that really guide us in our dealings with the world. But one thing I want to just emphasize, that bhakti is really something you can think very simple. Depending on your nature, if you can deal with the people who are associated and gave 100% of their energy, their life, to serve being Sri Krishna, Radha Krishna, and deal with them Laukik Sadbandhuvat. That means that the way you will deal with your family members, your friends, your seniors, the same way if you deal with the devotees, I'm talking about those who are much elevated devotees, who are 100% absorbed in the mood of serving Radha Krishna, then that will really serve the purpose of serving Krishna. Has anybody here seen Krishna? Seen Radharani? Has anyone had a knowledge of what relation we have with Radha Krishna? So if we don't, then whatever service we do really is not 100% bearing fruit. Just like we
say our Sthai Bhav, you know Sthai Bhav, Maharaj talked about. Sthai Bhav is, let's say for argument's sake, is Madhu. But right now, you feel you want to be his friend. You can go everywhere with him, right? The people who are in Madhuras, especially the gopis, you know, they are suffering all the time. They are just thinking, oh, Krishna is going out for grazing cows, and we are here, we cannot go with him. We cannot enjoy as much as his friends do. So they play with him. They go anywhere, everywhere with him. There is no societal restrictions. There is no other hindrance that the gopis face because of Durlabhata, like Maharaj mentioned, Nivaranata, and the societal restrictions and their own desire is there that is burning inside to meet with him. So, if you are feeling that way, you don't know that your constitutional mood is in Gopi Bhava, Manjari Bhava. So till you reach that stage, you are what you call Satcharati. That means, depending on the pure devotees you associate with, if you associate with just like the Pulindo girls, they go and see Mother Jashoda chastising Krishna, and Krishna is enjoying that. They want to feel like that. They want to serve Krishna that way, Bal Gopal. Then they go with the friends. They feel like, oh, we want to enjoy with Krishna like that. Then they see the gopis, the way they are always just ruminating about Krishna's pastimes, Krishna's qualities, and Krishna's mood, the beauty. They feel that, oh, we want to be feeling like that, we want to be in that mood. So they don't know what their Sthai Bhava is. So slowly as you progress, and with the mercy of the Guru Vargas, you get to know your permanent relationship with Radha Krishna. So to summarize, Radha Krishna's service. Radha Krishna's service is possible when you know your final permanent mood and relation with Krishna. Till that time we are just doing sadhana. So how we can really continue to progress? My experience is, if you really serve your Guru the way you have developed a relation with him, to become happy in his happiness, to become sad in his sorrow, and take care of him just like you take care of your father or your family member or friend, then you will really progress faster. Lokik sak bandhuva. Treat Guru not like, that a barrier between you and him as a person who is not approachable. You just become close to his needs. When he is not feeling well, find out what you can do for him. Gurudev became sick so many times when he came to Houston. He served him just like a family member, just like he is my father. So that is what I wanted to convey to you, that this is the way we can really do bhakti
Not, oh, Gurudev is there, I am serving Krishna. So just forget about what he is doing, what he needs. Rather, it's the other way. Guru comes before Krishna. Sakshat Hariteno Shamasta Shastra. So that's the way Vishwanath Chakravarti Thakur also says, and that Guru is not ordinary person. So with that, I have taken quite a bit of time. I will let Maharaj speak to you, and I hope he approves my mood. Magyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakchurumilitam Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Namo Vishnu Padaya Namo Krishnaya Bhutale Shishimad Bhaktivedanta Guru Swami Namani Namo Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmani Shishimad Bhaktivedanta Narayana Namani Mukam Karoti Vachanam Pangayate Giri Yat Kripatam Vande Shri Guru Dinatarinam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my unlimited obeisances to the lotus feet of Guru Padaparna, Om Vishnupada Stotra Shati Shri Bhaktivedanta Bhargava Maharaj, and also to meet all Guru Vishnu Vishnupada Stotra Shati Shri Bhaktivedanta Shri Narayana Maharaj, Shri Bhaktivedanta Shri Bhamana Maharaj, to all Rupa Varga, to all Vaishnavas assembled here, and all the respectful guests. So Gurudeva has requested me to speak a little bit about Vigraha Tattva. So what's the importance of deities and what is the meaning of deities, this manifestation of the Lord that comes here for and also what are the types of the deities that are manifested in this material world. So this morning he was explaining that the Lord, he appears in this material world in three ways. So he appears in the form of Nam and Vigraha and also Swarup. So what's the meaning of this? So the Lord, he appears in the form of his own holy names. And in Sikh Shastra, Lord himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he explains the Nam Akari Bahudani Jash Sarva Shakti Strata Pitani Amita Smaranena Kalaha Etadrishi Tava Kripa Bhagavam Mamapi Durdevi Tadrisham Janum Nanuraga. So the Sri Chaitanya Mahaprabhu explained that the Lord invested all his potency on these holy names, which are no different from him. And you can chant these holy names at any time. There is no rules for chanting these holy names. But Mahaprabhu, very in this humble mood, is saying that, but unfortunately, I did not develop taste for these holy names yet. So how unfortunately am I?
And also the scriptures, they explain that Nam is no different from the Lord. So in this way we can connect with the Lord through Nam, with His holy names. And this is explaining Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddha Nitya Mukto Abhinatval Nama Namino. So the holy names is non-different from the Lord. And also the Lord, He appears in His own Swarup. So when we see Lord Ramachandra in Tetra Yuga, He appears in this material world, it's in His own form. In Satya Yuga, so many forms as Narasimha, as Matsya, Varaha, and so many forms appears in. So this is His direct manifestation, and also in Dwapara in His own form as Krishna, and also in Kali Yuga He appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu. So in every Yuga, the Lord He appears on His own form. So Yada Yada Hi Dharmasya Glanir Bharati Bharata Abhyuktanam Adharmasya Tadatmanam Srijamyaham. So the Lord, He's appearing in His own form. He's saying that every yuga I will appear when there is a decline on the Dharma, when is the real religion, it's being destroyed by the atheists and the demons. So in this way the Lord, He will come Himself to reestablish this. And also, Gurudev was explaining this Thakurji, this Vigraha, He appears because we may try to serve. Gurudev was giving an example, okay, we can try to serve Guru, and this is very hard because Guru and Vaishnavas, they will chastise us. But we are so fallen, so we cannot actually accept the chastisement. So the Lord is so merciful that also He appears in this Mauna form. It means He's completely silent. He's not saying anything. Whatever you offer to Thakurji will accept us. So, but we should not see this Thakurji as mere, what's called, like material things as stone or as clay, as sand. So in Srimad Bhagavatam explains that there's 8 forms of this Vigraha, this manifestation of the Lord. So He appears in the form of stone, as clay, and so Shaili means appearing as the form of stone. Then appears in the form of clay, and also sand, painting, and also paint. So stone, sand, clay, wood, and painting. Oh yeah, by mind also we can worship the Lord. So stone, sand, Dharma is a wood. Clay. Yeah, clay. Clay, wood, painting. Metal. 8 forms the Lord appears. So, and but this Thakurji is not mere this form, because actually this Vigraha is no different from the Lord as well. So these 3 manifestations, Nama, as Swarup and Vigraha, they are completely, there are no difference between them. They are all Satchidananda. So that's why this Vigraha is Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarvakarna Karanam. So the Lord, He is completely full of conscience, He's full of knowledge, and He's full of bliss. So by engaging our mind and our senses with any of these 3 forms of the Lord, we can achieve this supreme happiness. But especially in this Kali Yuga, the Lord, the dharma of this era is to achieve the Lord through the chanting of the holy names. So this is explained Krita Yadyato Vishnu Tetrayam Vijate Make
Dvapare Paricharyam Kalokeshava Sankirtanam. So, in different yugas, there are different processes so we can achieve the Lord. So, in Satya Yuga, because the lifespan of all the human beings were so long as 100,000 years, so the process to achieve the Lord was dhyan, by meditation. But this process, it takes so much time and it's so hard for us in Kali Yuga to do this. Like we try to meditate just a little bit. If we close our eyes, then what happens? Sleeping is coming, and also we cannot really concentrate. Our mind is always going here and there. And then in Tetra Yuga, the process was yagya. But unfortunately, in this Kali Yuga, all the ingredients, they are so much contaminated. We can see like actually the proper wood for yagya is sandalwood, but so much hard to find sandalwood these days. So much fake sandalwood also. They just put some chemicals, some fragrance, and they say this is sandalwood. But anyhow, and also ghee, we see like what they are doing with the cows, and this ghee not actually pure. And so many other ingredients that we cannot perform perfect yagya. And then in Dwapara Yuga, the process was archana, to worship Thakurji. But Kali Yuga also, very hard to find the proper ingredients to worship Thakurji, and also very hard to ucharan, this to Pronounce. yeah, to chant these mantras is also because in this karma marga, if you pronounce something like some mistake, you don't get the fruit. So much hard to do this in Kali Yuga as well. But the Lord, very mercifully, He gives this easy process for these living entities which has very short lifespan, only maximum 100 years, which is chanting the holy names. So by chanting these holy names, we will be free from all our anarthas, all these undesirable things in our heart, and then we can really achieve this love of God. So I'll end up here, and just praying for that we can really chant this Shuddhanam one day, then we can really achieve, and we can really see that as Sachidananda Vigraha. Vancha Pavatra Kripa Sindhuviya Vacha Patitam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. नित्यानंद सहोदितम् नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयम् गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनमनोहरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय ते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशे विभूषितकरार्णवनीरदावात् पीताम्बरादुर्नबिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जानामि न वियाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभं न जाचं रम्यं सकलजनकामं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमथपतिनो गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हा देवी काकुभर गद गदयद्वाचा
जाचनी पत्य भुवि दंडव दुर्भटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदे अंगस्यामुर्भि चटामन्दे कृतन्द्रीवरं जड्डं जाचु गुरुरुचिसं पट्टम्बरस्य श्रियां भिन्नानिवासन इदुरसद्धामादि दामोदरं राधा स्कन्धनिवेशलोज्जलो भुजं ध्यायं स्तुदामोदरम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय तेरादि तं नयामि चरणाम्बुजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कितने लोग हिंदी सुनने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। कौन कौन हिंदी सुनना चाहते हैं? आप हिंदी जानते हो? व्हाट इज योर नेम? योर नेम? पार्डन? खुशलीन। खुशी में लीन है नहीं? बहुत अच्छा है, नाम अच्छा है ना। ये आपके मम्मी है क्या? क्या नाम है मम्मी का? राजन, राजवंत। वाह, राजवंत। अच्छा, राजवंत, बहुत अच्छे हैं। और आप लोग माता जी, आप लोग सब सामने आ जाओ, थोड़ा 2 मिनट कथा सुन लो। आइए, चेयर लेकर, चेयर सामने ले आओ। आ जाओ, सामने आ जाओ। इतने दूर क्यों बैठे हैं? हाँ? अच्छा, थोड़ा हिंदी। आज तो लास्ट हमारी यही कथा है। इसके बाद केवल अंग्रेजी बोल रहे हैं बड़े 3 बार। इधर तो 1 बार बोलता, सुबह बोलता हूँ इनके लिए। सुबह जो है, सुबह हर रोज इनके अंग्रेजी में जो है 1 घंटा में क्लास देता हूँ। हाँ, ट्रांसलेट कर दें। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हूँ। बहुत आनंद और खुशी की बात है, हम लोग आज साक्षात गुरुपाद पद्म तथा राधा गोविंद देव और गौर नित्यानंद जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, सीता देवी, लक्ष्मण भैया, भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी के चरण कमल की सानिध्य हम लोग बैठे हुए हैं। आज भी प्रातः काल से लेकर के अभी तक बहुत धूमधाम से
वात्सरिक उत्सव जो है वो मनाया। 12वां जो है ये विग्रह और मंदिर प्रतिष्ठा की उत्सव मनाया। बहुत लोग इसमें भाग लिया। दोपहर को जो है कम से कम 300-400 व्यक्ति जो है भक्त लोग आए और हवन आदि, कीर्तन हवन आदि भी किया यथा विधिवत। और हरि कथा भी सुचारू रूप में सभी भक्तों ने अपने अपने भावों के जो प्रकाश डाला, बहुत सुंदर लगा। अभी शाम की सत्र में इस समय जो है कम लोग आप लोग आए, क्योंकि यहाँ से तो आप लोग गए हैं, कई 4 बजे गए हैं। फिर आप लोग भी बहुत दूर दूर स्थान पर भी रहते हैं। इंडिया में तो बहुत निकट में रहते हैं, भक्त लोग आ जाते हैं, मंदिर भर जाता है। किंतु अमेरिका में अधिक हमारे भक्त लोग जब बहुत दूर दूर रहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा किसी को कार चला करके आना पड़ता है कि नहीं। जो स्विट्जरलैंड में रहते हैं और स्थानों पर रहते हैं, बहुत दूर भी रहते हैं, तो इसलिए शाम को लोगों की आना बहुत कम हुई। कोई बात नहीं, नियम के अनुसार थोड़ा भी हमें भी कुछ बोलना पड़ेगा। विग्रह के बारे में हमने कुछ बताया था दोपहर के समय जो है। स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से ही अपने चिन्मय विग्रह के द्वारा जगत में प्रकट होते हैं। चिद विग्रह कहा जाता है, सच्चिदानंद विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जीवों के कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में अपने परिकरों के साथ प्रकट होते हैं। किस लिए? हम लोग जितने दुखी हैं उससे सैकड़ा गुना दुखी कौन है? भगवान है। समझ में आ रहा? हम लोग संसार में तो दुखी है ही है, क्यों? ये संसार के कहा जाता है दुखमय कहा जाता है। एक संसार के एक नाम कहा जाता है क्या बताए? दुनिया कहा जाता है। क्या बताए? दुनिया कहते हैं दुनियादारी, सपन का खेला। ये जीवन है सुख दुख के मेला, दुनियादारी सपन के खेला। हिंदी में बोलते हैं ये जीवन है सुख दुख की मेला। मेला लगता है ना, मेला में भी अनेक प्रकार की भी मिठाइयां, अनेक प्रकार भी आनंद उत्सव भी होते हैं। किसी को पैसा चला जाता है, किसी को पैसा आता है। मेला में जो कोई खरीदता है कोई बेचता है, भाई है कि नहीं? आप लोग मेला में जाते कि नहीं? फेयर मेला में जाते हैं तो पैसा खर्च करके आते हैं। और जो मेला में आते हैं कुछ लोग वो बेचने के लिए आते हैं, कोई बेचने के लिए आते हैं, कोई खरीदने के लिए आते हैं। यही तो है। ये संसार भी उसी प्रकार ही है। ये जीवन है सुख और दुख की मेला, दुनियादारी सपन के खेला। ये दुनियादारी जो हम करते हैं, जो माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के साथ जो मिलते रहते हैं, एक मानो सपन की भांति है। जैसे रात्रि में आप सोए हुए हैं, सपना देखते हैं। क्या सपना देखा? अब राजा बन गए, अनेकों जो है आपके मित्र आदि, अनेक विशाल मकान आदि बने हुए, बहुत कुछ चलते जा रहे हैं। किंतु जब आपकी नींद टूटी तो देखा तो आप वही गुदड़ी में सोए हुए हैं।
टूटी फूटी गुदड़ी में सोए, यही तो ऐसा। इसलिए कहा जाता है ये संसार एक उसी प्रकार ही है सपन की खेला। हम सब एकत्रित हो जाते हैं भगवान की इच्छा से, और फिर भगवान की इच्छा से हम बिछोड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, किसी न किसी कारण से फिर चले जाते हैं। देखो आज 12-13 तारीख हो गया, आज 1 महीने पहले वो एयर इंडिया जो क्रैश हुई, कितने लोग देखो 242 242 पैसेंजर्स और प्लेन के जो कर्मी लोग जो थे, देखो सब सेकंड में, 1 सेकंड में सबकी कैसे चला है। बहुत दुख की बात है। मासूम छोटे छोटे बच्चा के लेकर के कहाँ आ रहे थे, सुन करके देख करके कितने दुख आता है, आप बताओ है। आज टीवी में उसके बार बार दिखाते रहते हैं, बार बार दिखाते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, यूट्यूब में देते हैं, है कि नहीं? आप लोग देखे है क्या नहीं है? आप लोग तो इंडियन है कि नहीं है? देखे होंगे से है। देखो अहमदाबाद से लंदन आने वाला थे, फ्लाइट जो है 2 मिनट भी नहीं हुआ, रन के बाद थोड़ी सी ऊपर उठी, फिर नीचे आकर के वो भी जहां पर जो है क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज था, और वहां पर लोग भोजन आदि कर रहे थे, और उसी पर जाकर के ऐसे करके गिरा। वहां पर लोग भी इंजर्ड हो गया, कितने लोग भी मर गए। देखो एक तो प्लेन में रहने वाले वो तो गए, आग तो लग गई, वो तो गए, और जो लोग बेचारा खाना खा रहे थे वो लोग भी गए। काल की ऐसी प्रभाव है। इसलिए कहते हैं ये जीवन की कोई भरोसा नहीं है, ये जीवन है कंस का बाजा, दुनियादारी सपन का खेल। ये जीवन हमारे कांच का बाजा, समझ तो हारमोनियम के बाजा कहते हैं, कांच का बाजा, तो ठोकर जरा से ठोकर से चूर चूर हो जाएगा। ये जीवन है कांच का बाजा है। देखो क्या बोले है, कितने दर्द और दुखदायक समाचार है कितने कष्ट। छोटे छोटे उसमें दिखाते, छोटे छोटे बच्चे जो, किसी मासूम बच्चा जो है 4-5 साल की है, और देखो किसे सब गए। हम इसलिए कह रहे हैं जीवन के कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कब चले जाए किसकी समय कौन बता सकते। यही तो कहा जाता है, शास्त्र में कहता है किम आश्चर्यम, व्हाट इज द वंडरफुल थिंग्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। किम आश्चर्यम है, वंडरफुल थिंग्स क्या है। हम नित्य प्रत्यह सूर्य उदय से अस्त, फिर अस्त से उदय, हम क्या देखते हैं, कितने लोग इस संसार से जा रहे हैं और रोज समाचार यही मिलता रहता है। कहीं बाढ़ में लोग मर रहे, कहीं सूखा पड़ जाती है, बिल्कुल 3-4 महीने बिल्कुल बारिश नहीं हो, कहीं सूखा पड़ जाते ना, बिल्कुल पेड़ पौधे सब सूख जाते। पानी के लिए लोग तड़पते रहते, देखो और कहीं इतने वर्षा होती है, बारिश होती है, जिससे बाढ़ में सब बहा करके लेकर चले गए। ये हर रोज समाचार आपको मिलते रहते हैं। दुबई में से लेकर के आप लोग सभी समाचार तो आप लोग पता चलते हैं। देखो हम लोग समाचार इसलिए लेते हैं, मनुष्य है, उससे थोड़ी समाचार लेते हैं,
ना पक्षी समाचार लेते हो तो कोई किसे लेते हैं, उड़ते जा रहे गए कौन कहाँ गए कहीं पता नहीं। हाँ मनुष्य ये, इसलिए एक दूसरे से हम समाचार लेते हैं, न्यूज लेते हैं भाई, बात ऐसे ही है ना। क्योंकि हमारे मित्र, हमारे परिवार लोग पृथ्वी की कहीं कहीं कोने कोने में कहीं नहीं है विराजमान है, किसी की है कि नहीं। आपके मित्र यहाँ पर है, ह्यूस्टन में है, हो सकते कलकत्ता में ही होगा, और क्या बोले अमेरिका, और पृथ्वी कहीं नहीं कहीं है आपके, ऑस्ट्रेलिया में होगा, है कि नहीं। इसलिए आप हर रोज सब जगह की समाचार भी लेते हैं। हमारे प्रिय मित्र आदि लोग ठीक है कि नहीं। पशु ठीक, पशु के समाचार लेते हैं ना चिंतन करते हैं है? हम इसलिए कह रहे हैं हम मनुष्य है, इस संसार में रह रहे हैं और इस संसार में सभी के हम समाचार लेते हैं, सबके सुख और दुख की चिंतन हम करते हैं, है कि नहीं। दूसरे के सुख में हम सुखी होते हैं, दूसरे के दुख में हम दुखी हो जाते हैं। मित्र लोग हैं हमारे सब है, सभी हमारे के कुटुंब है सब है। इसलिए तो हम समाचार लेते हैं। कोई कहते हैं समाचार देखना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार मित्र भक्ति वेदांत तो स्वामी महाराज है अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो कोई शिष्य कहने लगे गुरुदेव क्या हम लोग न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कहने देखो तुम मनुष्य हो तो पढ़ोगे और मनुष्य नहीं हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। अपने परिवार में हम रह रहे हैं, समाचार लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र में वेदों में भी कहा मनुष्य बनो है आज समझ में नहीं, आज पहले हमें मनुष्य बनना चाहिए कि नहीं। हमारे परिवार लोग कैसे है नहीं है समाचार लेना नहीं चाहिए। आप यहां पर ह्यूस्टन में रह रहे हैं, कलकत्ता में आपके मित्र लोग है कि नहीं है, परिवार लोग भी होगा, तो उनके लिए भी समाचार लेना पड़ता है। हम मनुष्य है इसलिए हम सबको सभियों के साथ हम कनेक्टेड रखते हैं। पशु की कोई जरूरत नहीं होता है। चलो हम यही कार्य, किंतु इसलिए कहते किम आश्चर्यम, इस संसार की आश्चर्य वस्तु क्या है जो हम लोग हर रोज समाचार पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं। और न्यूज में कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं, कितने लोग कहां कहां, किंतु तब भी हम सोच रहे हैं हम नहीं मरेंगे है? हम इसे हाँ कभी कभी सोचते हैं तो मरना ही तो है, आज नहीं मरेंगे कम से कम 100 साल के बाद मरेंगे। किंतु देखो आप बता नहीं सकते है? कब जब महाराज आपके सिरहाने पर आ जाएंगे, आपके ले जाएंगे क्या पता है? तो इसलिए कहते हैं भाई शरीर जब छोड़ना ही है, इस संसार के सब अस्तित्व को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। जाना तुझको पड़े अकेला, भजले हरि का नाम रे, ले ले रोए कोई कृष्ण के प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिकराऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिकरा गली गली है। ये राम नाम कृष्ण नाम यही हमारे जीवन की सार। जाना तो पड़ेगा है, जो इस संसार में आए हैं इस संसार को छोड़कर के जाना ही पड़ेगा है।
इसलिए हमने कहा इस संसार के एक नाम है कि दुनिया। दुनिया में दुन धातु से बनता है, बारबल रूट दुन। दुन शब्द के संस्कृत में होता है दुखमय संसार, दुखालय सतम। ये संसार दुखमय है, क्या करोगे भाई है? इस दुखमय संसार में रह करके भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु के नाम ले लेना पड़ेगा, है? पहले कहना ये जीवन है सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपनों के खेला है। यही इसी संसार में रह करके हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु के नाम ले लो, है? और कुछ करना नहीं, कुछ तो कर नहीं पाएंगे, है? एक स्त्री जो है वो घर में काम कर रही थी, है? झाड़ू लगा रही थी, साफ कर रही थी। इतने समय जब महाराज उनके कमरे में आ गए, वो स्त्री कहने लगे तुम कौन हो? कहने लगे मैं जब महाराज हूं। अरे मेरा पतिदेव यह घर में नहीं है, आप हमारे घर में कैसे घुस गए? यहां से निकाल जाओ। तो कहने लगे मैं तो निकाल जाऊंगा, क्योंकि तुमको लेकर के भी जाऊंगा। बोले हमें लेकर कहां लेकर के जाऊंगा? बोले देखो, जिसको सबको जहां पर जाना पड़ता है वही स्थान, हाँ? ले तो हमें यहां पर बहुत काम है। वो क्या बोली? मेरा यहां पर काम है, कपड़ा साफ करना है, पति के लिए रसोई बनाना है, छोटा बच्चा है उनके लिए भी भोजन तैयार करना है। तुम हमें ले जाओ तो ये काम कौन करेगा? तेरा बाप करेगा। जब महाराज कहने लगे तू मेरा जो कुछ भी बोलो, है देख 2 सेकंड रह गया, है? ऐसे करके जब महाराज ने के 2 थप्पड़ मारा और उनको लेकर के चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम इसलिए कह रहे हैं ये जीवन की कोई भरोसा नहीं है भाई, कब क्या हो जाए क्या जाने, है? इसलिए जब तक हम जीवित है, शरीर में हम विराज है, उस समय क्या कर लो? थोड़ा प्रभु के नाम कर लो, प्रभु की कथा सुन लो, बस, है? नाम कर लो, कथा सुन लो, बस, और क्या करना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो कितने सुंदर। यदि आप कहो ये सबको तो जाना पड़ता है, जो भजन करता है उसके जाना नहीं पड़ता है क्या? उसको भी जाना पड़ता है। जो भजन नहीं करता है उसको भी जाना पड़ता है। तो हम भजन क्यों करेंगे? लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोले देखो जो भजन नहीं करता है उसको भी मरना पड़ता है, जम लोग उसको ले जाते, और जो भजन करता है उसको भी जाना पड़ता है। आप बताओ, है? तो हम इस संसार में कुछ सुभोग कर लेता हूं। कहते देखो इसके लिए उत्तर दिया जाता है। देखो बाघिनी है ना, बाघिनी समझते कि नहीं? क्या है? टाइग्रेस है। एक है बाघ और एक बाघिनी, फेमिनिन जेंडर। क्या है? टाइग्रेस। देखो वो अपने बच्चों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान भी लेकर के जाती है, अपने दांतों में पकड़ करके। आप देखे होंगे, है छोटा जो बच्चे जो है कब्ज बोलते हैं ना, कब्ज, वो क्या करता है? ऐसे दांत से पकड़ करके लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान वो ले जाती है। किंतु वो दांत से ऐसे पकड़ती है, वो जो टाइग्रेस जो है, बिल्कुल अपने बच्चे में तनिक भी खरोच भी तब तो नहीं लगेगा, है? देखो ले जाते हैं एक स्थान से, और वही बघिनी
टाइग्रिस जो है जब किसी के ऊपर आक्रमण कर दे, हिरण के ऊपर आक्रमण कर देता है और ऐसे दांतों के द्वारा ऐसे पकड़ लेती है बिल्कुल हिरण के क्या करती है, उनकी सांस नाली पर यहां पर पकड़ लेती है और दोनों दांत को ऐसे दबा देती है और हिरण को सांस नाली को बंद कर दिया और बंद करके देखो वो कितने शक्तिशाली है। ऐसे झटका ऐसे मारते हैं, अपने सिर पर ऐसे उठा देते हैं, ऐसे करके लेकर जाते हैं, इतने शक्तिशाली है। आप यूट्यूब में देखा, जिनको आप लोग हिरण ने देखा नहीं तो हम लोग तो देखा है, 24 परगना में के देखा हमने, है विशाल जो है बाघ वाघिनी है, कितने फीट लंबा, यार हुंकार करते हैं, ऐसे जोर से हुंकार करते हैं जैसे आपके डरा देंगे, शब्द बहुत जोर से। हम इसलिए करें, देखो वही बाघिनी जो है टाइग्रिस जो है अपने बच्चे को दांतों पकड़ करके लेकर के जा रही है एक स्थान से दूसरे स्थान, किंतु तनिक भी खरोचनी तक नहीं है, कोई कष्ट नहीं होता उसका। और वही बाघिनी जब हिरण के जब पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान भजन के लिए जाते हैं, देखो उसको कैसे मार देती है। तात्पर्य क्या है, उसी प्रकार जो भजन नहीं करता है, जम के महाराज जमदूत जो है उसके बहुत कष्ट आदि दे के, जतना दे करके उसको फिर जमलोक में ले जाते हैं और वहीं पर दंड भी देते हैं, नरक कुंड में उसको डाल देते हैं। श्रीमद् भागवत में इसके वर्णन है। जो लोग भगवत भजन नहीं करता है, पापी लोग नरक पाप कर्म आदि करता रहता है और उनको जम के दूतों जो है उसके कष्ट देते हैं, इतने कष्ट। और दूसरी मैंने कहा जो भगवत भजन करने वाले होते हैं उनके पास तो जमदूत आता ही नहीं है, वो तो विष्णुदूत आते हैं। हाँ सुन, जो एक बार भगवान के नाम ले लेते हैं उनके पास जमदूत नहीं आएगा भाई। उनके पास कौन आएगा? भगवान वैकुंठ के पार्षद लोग आएंगे और उनको सुंदर दिव्य विमान में बैठा करके भगवत धाम में ले जाएंगे। यदि कभी जमदूतों के भूल से कई भक्तों के लेकर के गए तो जम महाराज उसके बहुत डांटेंगे जमदूतों को। विशेष करके कोई एक बार गुरु से दीक्षा मंत्र ले लेते हैं, जम महाराज कहते हैं इनकी पाप पुण्य के विचार मेरे स्थान पर इख्तियार में नहीं है, माने मेरे क्षेत्र में नहीं है। वो कहां जाएंगे? बोले उसके श्री हरि के पास। इसके उदाहरण मैं देता हूं। एक समय की बात है, गुरुदेव से जो है एक व्यक्ति दीक्षा मंत्र लिया, तो उनको हार्ट अटैक हो गया, ये छाती पर दर्द होने लगे, तो उनके जो है दिल्ली में जो है वो अस्पताल जो है अच्छा जो है क्या बोले हार्ट अस्पताल जो है एम्स है, चलो वहीं पर जो भर्ती कराया है। जब भर्ती कराया डॉक्टर उनको चेकअप किया, चेकअप करके डॉक्टर ने बताया ये तो मर चुका है, मैंने इसको ये शरीर छोड़ दे, इसके कुछ है ही नहीं। पल्स देखा है, आज बोले क्या करें भाई। जब अस्पताल में भर्ती कर दिया तो फिर उसके डेथ सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा डॉक्टर को, है। डॉक्टर क्या कि डेथ सर्टिफिकेट देने में वो तैयार यदि करने लगे, हैं उसमें 100 घंटा 100 घंटा तक लग गया से, है। और उनके डेड बॉडी पड़ा हुआ है। देखो करीब 45 मिनट के बाद, 1 घंटा 45 मिनट डेथ सर्टिफिकेट
तैयार कर रहे थे उनको डॉक्टर जी हैं। वो ऐसे खड़े होकर बैठ गए। हाँ, डॉक्टर लोग देखकर तो आश्चर्य हो गया। बोले हम लोग सब प्रकार से चेकअप किया, तब तो हम जो डेथ सर्टिफिकेट तैयार करें इसको हैं। तो उनको पूछा भाई तुम क्या बात हुई, तो वो स्वयं कहने लगे ये देखो मुझे तो पता नहीं है, एक कब मैं अस्पताल में रहा उसमें तो मैं माने अनकॉन्शियस हो गया था, किंतु हमें इतना तो पता है दो जमदूत आकर के मुझे पकड़ करके ले गए जम महाराज के पास। वो कह रहे स्वयं है। और जब मुझे ले गए जब महाराज मुझे देख करके उनकी दूतों के डांटने लगे, अरे इस व्यक्ति के क्यों लेकर के आया, ये व्यक्ति तो मुक्त महापुरुष, यहां तो नाम भी बोल दिया, ये नारायण गोस्वामी महाराज से दीक्षा मंत्र लिया है, इसको इधर क्यों लेकर के आया, जाओ उसको वापिस कर दो। देखो वो कह रहे हैं मुझे साक्षात रूप में जब महाराज के दर्शन हुई है, और जब महाराज मुझे ऐसे हाथ जोड़ करके भी कहने लगे हमारे दूतों जो है थोड़ा गलती कर दी, देखो हाँ? आश्चर्य की बात। और फिर मुझे यहां पर लेकर के आया, और वृंदावन बिहारी लाल की। वो कौन थे, एक रागलिका दीदी है दिल्ली के, जो उसके पिताजी हार्ट अटैक हो गया। देखो उनको पूछना, मैं तो आपके नाम बताए थे, उनके पूछना, वो ये सत्य बताए, सच बताए। उस समय गुरुदेव जो है विराजमान थे, श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज विराजमान थे हैं। देखो सदगुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेके फल क्या होता है? हम इसलिए कह रहे हैं जमलोक में नहीं जाओगे, जब महाराज की वो विचार के अधीन में नहीं रहेगा। वो संग जब महाराज जी करें जो एक सदगुरु दीक्षा लेकर के मंत्र आदि जप करते हैं, वो मेरा स्थान में नहीं रहेगा। देखो आश्चर्य की बात है। किंतु यहां पर एक बात मैं बता देता हूं, यदि कोई वैष्णव निंदा करते हैं, गुरु निंदा करते हैं, तब तो जब महाराज अच्छी तरह से और जमदूत अच्छी तरह से पिटाई करेंगे। वो नारायण मन से दीक्षा ले और नित्यानंद से दीक्षा ले और कहीं से भी दीक्षा ले, इतने पिटाई करेगा अभी क्या बताऊं, नरक में डुबा देगी। कहते हुए मेरे गुरुदेव तो सदगुरु है, अरे गुरु सदगुरु से नहीं होता है, गुरु तो सद है, किंतु तुमने यदि वैष्णव निंदा किया, गुरु की निंदा किया, तो कोई तुम्हें रक्षा नहीं करेगा। समझ में आ रही कि नहीं? इसलिए कहा जाता है भजन थोड़ी कम करो, कोई भी बात नहीं है, किंतु कभी गुरु वैष्णव की निंदा मत करो। जो गुरु निंदा करता है, जो वैष्णव निंदा करते हैं, उनके तो जमालोक में जाना ही पड़ेगा। वो किसी से भी दीक्षा भी दे, कुछ भी हो है। इसलिए कभी गुरु वैष्णव की निंदा ना करें, यही शास्त्र देता है। समझ में आ रही कि नहीं? कभी गुरु वैष्णव के निंदा करना नहीं। कहा इसने महापुरुष का, कहा निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले अजय चैतन्य से जानिबे। और सदगुरु से दीक्षा लिया, सोचते हैं ये मेरे गुरुदेव हमें रक्षा कर देंगे, मैं जितना ही होना कि सबके निंदा करते रहे हैं। ऐसे नहीं, डोंट क्रिटिसाइज टू एनीवन। इफ यू क्रिटिसाइज टू Guru and Vaishnava, no one can help you. Harup rushte gurutrata, और गुरु रुष्टे न तो कश्चना। समझ में आ रही कि नहीं?
यदि कहीं नाम करते के नाम अपराध हो जाए, नाम करते करते नाम प्रभु क्षमा कर देते हैं। विग्रह सेवा आदि करते करते विग्रह सेवा में कोई अपराध हो जाता है, उसे एक बोले क्षमा प्रार्थना मंत्र है, करने से है विग्रह भी आपकी क्षमा कर देते हैं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन है यत् करोसि तत्क्षमस्व माम। मंत्रहीनं क्रियाहीनं बुद्धिहीनं जनार्दन, हे जनार्दन मैं मंत्र भी नहीं जानता हूं, क्रिया भी नहीं जानता हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मेरा कोई योग्यता नहीं है, आप मेरे सारे अपराध को क्षमा कर दो। इसी कहते सेवा करने के बाद भगवान के निकट, विग्रह के निकट ये प्रार्थना करना पड़ता है। भगवान कहते हैं जाओ विग्रह कहते जाओ, तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं। किंतु देखो कोई गुरु की निंदा करते हैं, कोई वैष्णव की निंदा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हें की रक्षा नहीं करूंगा। इसलिए कहते हैं हरो रुष्टे गुरुत्र, भगवान कभी बिगड़ जाए तुम्हारे ऊपर तो गुरु रक्षा करेंगे, किंतु गुरु वैष्णव तुम्हारे ऊपर यदि बिगड़ जाए तुम्हें कौन रक्षा करेगा? भगवान कहते हैं मैं भी रक्षा नहीं करूंगा। इसलिए कभी गुरु वैष्णव की निंदा करना नहीं चाहिए। अभी समय हो गया ना, समय और टाइम नहीं लेना नहीं चाहता हूं, इसलिए हरिनाम करे, सदगुरु आश्रय करके भजन आदि करे, जो जैसे भगवान जैसे गुरु आपको मिलाया ठीक है, विश्वास करके हरिनाम करे, भजन आदि करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक शब्द बता देता हूं, मेरे गुरुदेव कहते हैं जो गुरु त्याग कर देते हैं, गुरु त्यागी ये महाअपराधी है। बोले कैसे? ये महाअपराधी है, क्यों? ये सब सहजियावाद है, सब है? कहते हैं देखो इस गुरु के त्याग करके दूसरे गुरु से क्यों जाते हो? उसे कुछ अपने अधिक फल मिलेगा, अपने सुविधा के लिए है। देखा यह तो हमें वो पद नहीं मिल रहा है, वो सुविधा नहीं मिल रहा है, पहले इस गुरु के त्याग करके मैं दूसरे गुरु के पास चले जाता हूं, वो अपराधी है। यदि गुरु सदगुरु हो, गुरु त्याग करना नहीं चाहिए, है? हमारे गुरुदेव के समय हम देखो, हम तो गुरुदेव नारायण महाराज जी के साथ ही था। गुरुदेव जब अशस्त्र लीला आदि करे 2010 में गोवर्धन वार्ड में थे, उसमें नाम तो अभी लेना नहीं चाहता हूं, है एक ब्रह्मचारी, ये सारे विदेश में गुरुदेव के साथ भी भ्रमण भी किया, शायद अमेरिका भी आए थे शायद मेरे ख्याल से। चलो इधर आए कि नहीं है मुझे, चलो है गुरुदेव के साथ समझ भाव एक किया, फिर पता नहीं उनकी है गुरुदेव के साथ और गुरु भाइयों के साथ शायद कुछ बात हुई, तो क्या कि गुरुदेव के छोड़ दिया, श्री नारायण गोस्वामी महाराज को छोड़ दिया। उन्होंने नारायण गोस्वामी महाराज से दीक्षा मंत्र लिया था, करके दूसरी जो है गुरु से दीक्षा मंत्र ली। समझिए, फिर 2010 में जब गुरुदेव जो अशस्त्र लीला कर रहे थे गोवर्धन में, है अशस्त्र करने के करीब कुछ महीने पहले मेरे ख्याल से जो है वो आए थे, तो गुरुदेव उनको पूछा, पहले मैंने सुना तुम मुझे छोड़ करके कोई दूसरी गुरु से तुमने दीक्षा मंत्र ली, तो उन्होंने कहने लगे हाँ गुरुदेव हमने दूसरी से मैं दीक्षा मंत्र आदि ली। गुरुदेव कहने लगे, देखो श्री गुरुदेव नारायण महाराज, मैं उसमें साक्षात था गुरुदेव के सामने, गुरुदेव कह रहे थे है मैंने तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध किया? श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज कह रहे थे उनको,
जो मैं तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध किया, तुम मुझे छोड़ करके दूसरे गुरु के पास गए। ठीक है, जहां पर रहो सुखी रहो, किंतु तुम ये बताओ मैंने तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध किया है? हो सकता है तुम्हारे गुरु भाई से है मत विरोध हो गए, किंतु मुझे छोड़ करके तुम क्यों गए? ये गुरुदेव भी कहा था। गुरुदेव तो उतना ही बोले, कि मैं तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध किया, इतने गुरुदेव बोले बस, और गुरुदेव मौन हो गया और कुछ वो चले गए। इसके बाद जब 2010 में गुरुदेव जो अस्वस्थ लीला कर रहे थे 25 क्या बोली परिक्रमा के समय जो है कार्तिक परिक्रमा के समय है, गुरुदेव के अंत जो लीला आदि चल रहे हैं जो उस समय जो वो भी आए, किंतु किसी ने उनको अनुमोदन नहीं किया गुरुदेव के पास जाने के लिए। और देखो इतने विद्वान है, इतने पंडित है, इतने संस्कृत के महान ज्ञान है, अभी कहां कहां अद्वैतवादी इधर उधर घूम रहे हैं। मैं तो उसके एक बार कहां मिले था, इतना बड़ा लंबा दाढ़ी रख दिया है। बिल्कुल देखो गुरु त्याग की फल क्या हो जाता है। लोग सोचते हैं मैं इस गुरु के छोड़ करके दूसरी उच्च गुरु के पास चले जाता हूं और उच्च गुरु से मुझे साक्षात वैकुंठ मुझे भगवत राधा दासी मिल जाएगा मुझे, किंतु गुरु तक की फल क्या होता है, कितने नरक में जाना पड़ता है, कौन रक्षा करेंगे आप बताओ। गुरुदेव तो चले गए, गुरुदेव तो इतना ही कहा दिया, ये मैंने तुम्हारे चरण में कौन सा अपराध की, तो मुझे छोड़ करके चले, मुझे छोड़ दिया। और देखो फिर गुरुदेव उसके की क्षमा नहीं किया ना कुछ भी, वो आए थे क्षमा मांगने के लिए, किंतु उनके किसी ने जो है उनको अनुमोदन नहीं किया गुरुदेव के पास जाने के लिए है। अच्छा बताओ कितने करोड़ जन्म लग जाएगा, कौन क्षमा करेंगे। हरु रुष्टे गुरु त्राता, और गुरु रुष्टे न तो गुरुदेव रुष्ट हो गए कि नहीं होगी, आप बताओ। उनको क्या गति है, मेरे तो समझ में नहीं आता। इतने विद्वान है, इतने पंडित है? बहुत ज्ञानी था वो, और बहुत विद्वान भी है, मठ में भी रहा कितने साल, और गुरुदेव के साथ भ्रमण भी किया सर्वत्र। मैंने तो नाम नहीं लिया, आप लोग जानते हैं उसको अच्छी तरफ से है। अच्छा देखो उनके फल क्या हुआ है, फल क्या हुआ आप बता दो है। गुरु चरण में अपराध की फल ऐसे भटक रहे, वो भी एक ग्रंथ लिखा, पूरा मायावादी ग्रंथ लिख दिया बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है भाई। इसलिए देखो कभी गुरु त्याग करना नहीं चाहिए है। यहां तक भी इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज बोले देखो किसी को जो मध्यम गुरु भी मिल जाए, मध्यम अधिकारी गुरु भी मिल जाए, तथापि गुरु त्याग करना नहीं है। ठीक है, उत्तम गुरु से तुम शिक्षा ले लो। रघुनाथ दास गोस्वामी किससे दीक्षा लिया है? जदुनंदन आचार्य है कि नहीं। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी जदुनंदन आचार्य से उनको त्याग नहीं किया, उनके लिए प्रणाम मंत्र लिखा, नाम श्रेष्ठं मनोपि सचपुत्र स्वरूपम रूपम तसा ब्रजम गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडं गिरिवरमो राधिका माधवासन प्राप्त जस्स प्रथित कृपया श्री गुरु तम नतोस्मि। ये मुक्ताचरित ग्रंथ में रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे सुंदर ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ के नाम है मुक्ताचरित ग्रंथ। और मुक्ताचरित ग्रंथ में रघुनाथ दास गोस्वामी अपने गुरुदेव जदुनंदन आचार्य की प्रणाम मंत्र लिखा। हाँ समझिए कितना सुंदर। किंतु देखो शिक्षा आदि कहां से दिया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर, राय रामानंद है, विशेष करके स्वरूप रघु कहा जाता है। महाप्रभु उनका हाथ पकड़ करके, रघुनाथ दास में हाथ पकड़ करके स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिया, इसलिए सभी से कहा जाता है स्वरूप रघु
है, ही बिलोंग्स टू स्वरूप दामोदर। फिर चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु के सारे परिकर लोग एक एक करके जब अंतर्ध्यान हो गए हैं जगन्नाथपुरी से, तब रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आकर के रूप सनातन के पास रहे और वृंदावन में रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद के अनुगत में भजन आदि किया, इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद के लिए भी प्रणाम मंत्र लिखा। क्या लिखा? विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ में, वैराग्य योग भक्ति रसं प्रजत्नि अपायन माम अनभिस्वंधम कृपाम्बुधिर्ज परदुख दुखी सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि। पढ़ना है ग्रंथ, विलाप कुसुमांजलि ग्रंथ। रूप गोस्वामी पाद के लिए इतने तो प्रणाम मंत्र लिखा, रूपानुगत की तो झारी लगा दी भाई। मैं बोलते हम तो सारा रात बोलते रहूंगा भाई, रघुनाथ की कथा जो है इतनी सुंदर मधुर है। रूप गोस्वामी पाद इसलिए कहता है, रघुनाथ दास में कहता है रूपानुगा वैष्णव कहा जाता है। इसलिए ये सब शिक्षा क्या हमको लेना चाहिए, नहीं तो इस गुरु के छोड़ करके दूसरे गुरु, तीसरे गुरु, चौथे गुरु है। हाँ समझिए, मैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत मैंने डांटता रहता हूं, बोले गुरु कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। एक के छोड़ करके दूसरे, दूसरे के छोड़ करके, ये थोड़ी ऐसी है। उसके देना चाहिए ना, वो हमें हमारे विचार के विषय नहीं है। वो क्या किया नहीं किया उससे हमें हम विचार नहीं, हम अपने तो विचार करें है, समझ नहीं, अपने के तो होना चाहिए ना। वो क्या करे नहीं करे, हमें उसके ऊपर क्यों हम ये लगाएंगे, इंतजाम क्यों लगाएंगे? आ समझे, तो यही विचार करते। इसलिए कभी गुरु त्याग करना चाहिए नहीं चाहिए। गुरु त्याग की 3 विषय में गुरु त्याग के लिए शास्त्र में कहा गया। एक गुरु यदि मायावादी हो, है ना, अहं ब्रह्मास्मि, उसको त्याग देना चाहिए। और एक गुरु यदि वैष्णव निंदा करने वाले हैं, जो गुरु वैष्णव की निंदा आदि करते हैं, उस गुरु के त्याग दो, शास्त्र में लिखा गया। और ये गुरु फॉल डाउन हो जाता है, जो भी नॉनसेंस गुरु होता है, उस गुरु के त्याग दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। पुनश्च वैष्णव गुरु धारयित, जीव गोस्वामी पाद लिख लो। ये 3 कंडीशन में आप गुरु त्याग कर सकते हैं, नहीं तो गुरु त्याग करने की जरूरत नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राम। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय हेलो राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा महारानी की जय, राधा रानी की जय। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। दिया, इसलिए तो हर साल मैं आ जाता हूँ, क्योंकि साल में 2 बार भी आ जाता हूँ, 3 बार भी आ जाता हूँ। 3 बार कभी नहीं आए, कभी नहीं आते। अरे मेरी इन फ्यूचर यार।
अच्छा महाराज, আপনার আর নাম করো গুরু ত্যাগের যে তিনটে স্থিতি বলেছে না, তার মধ্যে এরকম কি একটা কোথাও বসতে পারে কি গুরু ধরুন আপনার ঘনিষ্ঠত গুরু হতে